जोएल को वेलकम करेंगे और हम आगे का जो वक्त है वो हम प्रॉफिट जोएल को देना चाहेंगे। जी भाई काशान, आप आगे से लीड ले सकते हैं। Brother Joel, Prophet Joel, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. God bless you. In Jesus' Same, mighty name. same to you, sir. Sir, now it's your turn. Now it's your time. You can share the word of God. Okay, thank you so much. God bless you, Sister Shepherd. God bless you, everyone connected. I'm so grateful to have all of us from different tribes, from different nationalities, from different parts of the world, joining on this live broadcast of healing and deliverance, the moment of miracles. मैं Praise खुदावन God. मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि हम मुख्तलिफ अ, मुल्कों से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ कबाइल से, मुख्तलिफ मतलब तरह तरह से हम लोग तक बहुत सी जगहों से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। यस ब्रदर। So I really want us, everyone, whatever you are doing presently now, I would really love for you to stop and focus so that you can receive the word of the Lord, the word of transformation, the word that will change your circumstances. I want you to focus in Jesus' mighty name. मैं चाहता हूँ कि अभी आप जो भी इस वक़्त कोई भी काम कर रहे हैं ज़रूरी उसको फ़िलहाल रोक दीजिए, ताकि हम खुदा के कलाम को, जो कलाम ज़िंदगियों को बदलता है, जो कलाम हमारी ज़हनों को, सोचों को तब्दील करने की कुदरत रखता है, हम उससे फ़ैज़-याब हो सकें। And if it is possible, you can unmute your video, not your mic, just your video, so that we can take a look at you and see who is connected with us. Because many people have a blank screen. So at least, even just for a minute, you can unmute your video. Let us see you. God bless मैं you. मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं, अपने कैमराज़ को, जो क्योंकि मैं देख रहा हूँ ब्लैंक स्क्रीन्स हैं, मैं चाहता हूँ कि हम देख सकें एक-दूसरे को कि हम कितने लोग हैं। थोड़ी देर के लिए अपने कैमराज़ को भले ऑन कर लीजिए, माइक को ऑन ना कीजिए, लेकिन कैमराज़ को ऑन कीजिए ताकि हम जान सकें कि हम सब एक-दूसरे को देख सकें। Praise God, praise God, praise God. खुदा उनकी तारीफ़ हो, खुदा उनकी तारीफ़ हो। Okay, so let's dive into the word of the Lord. Let's dive in and see what the Lord wants for us. Let's see what Jesus Christ is about to tell us today, tonight. आइए हम कलाम मुक़द्दस में उतरते हैं, उसकी गहराइयों में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि खुदा का कलाम आज हम सबों से क्या फ़रमाता है। The book of Second Timothy, chapter 2 and verse 20. That is 2 Timothy 2:20. Second दूसरा Timothy 2:20. दूसरा तिमोथियस 2 बाब उसकी 20वीं आयत। And before we go into the word, I just want us to pray in tongues for a minute. If you know how to speak in other tongues, you know how to pray in tongues, you know how to pray in the heavenly language, I would like you to just open your mouth, unmute your mic, and speak in tongues. You can unmute your mic. Let's speak in tongues for like a minute or two, and also welcome again the presence of the Holy Spirit before we continue. Thank you, Lord. मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम सब जो गैर ज़ुबानें बोल सकते हैं, ज़रूर इस वक़्त गैर ज़ुबानों में दुआ कीजिए, ताकि हम खुदावंद से बरक़ात को हासिल कर सकें और कलाम मुक़द्दस को में उतरने से पहले, उस पर हम गौर व फ़िक्र करने से पहले ज़रूर थोड़ी देर के लिए गैर ज़ुबानों में बात करें, जो कर सकते हैं। Oh, Shadabalaro Seprekilo Sembrakila Haskeila. Oh, thank you, precious Holy Spirit. Maleko Shekila Prasonde Gila Prasta.
Thank you, Oh, Jesus. Zephyrus. Paramashikiri, Namashokura, Ora Vasokiri, shebala masukara bakala Mashikiri, baba Baba, baba Pratsini, Malzo. Namashikiri, baba ora Baba, Baba, hallelujah Baba, baba kama tora shabara Soro sukara so baba shake the baby Maso Araba Bredi Baba Sombra, Baba Ateto, Shakiri and Shakara the baby Sombra, shake it Legrose de Berosa Badala Brosha. You are present. Yara Piscina la Mahata Carasita Yara Batana Macabahari North and let us Yara Yara Bahana Lara Hotoro Pasoto Hania Lasita your heart. Shake it, baby, Kalama and Brose de Oh, Sabra Sombra, Yara Pisita Nalara Mahadia Sita Nalara Mahala Antalara Macabara Solo Commander Streets Halaror Yara Pina Nana Maca Hikena Nana Mahabari hallelujah baba kama tora shabara baba labra sukara Capolo Sura hallelujah Rama Calaracassia Toloro Sotora Caravia Hallelujah, Baba Nalara Makas. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Rabba For Nalara precious Makas. praise. hallelujah thank you Hallelujah. Praise Hallelujah. God. खुदा Hallelujah. हालेलुया खुदा उनकी तारीफ हो Now, book of Second Timothy, chapter 2 and verse 20. 2 दू- Timothy 2, 2 Timothy 2:20 or Second Timothy 2:20. दूसरा थिमोथियस 2 बाब उसकी 20वीं आयत It says, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Amen. खुदावन नहीं के वो मुक- फिर खुदावन के पढ़ेंगे मुकद्दस पाक कलाम में यूं लिखा है दूसरा थिमोथियस 2 बाब उसकी 20वीं आयत बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए 21वीं आयत में लिखा है बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तईं पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मकदस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो आमीन आमीन Amen. So आमीन I want, I want you Amen. to know the topic I'm bringing up right now is Jesus Christ is coming again. मैं Jesus Christ again. मैं मैं आज जो आपके इल्म में एक बात लाना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं Hallelujah. हालेलुया Now, the great house, if you check verse 20, it says, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver. The great house the scripture is talking about is the church.
अगर हम 20वीं आयत पर गौर करें तो यहाँ लिखा है बड़े घर। जो बड़े घर जहाँ पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये चर्च है, कलीसिया है। The church is a great house where there are vessels of gold and of silver. What does this mean? कलीसिया जो है ये वो जगह है जहाँ पर सोने चांदी के बर्तन होते हैं। इसका क्या मतलब है? There was a particular time in the scriptures that Jesus spoke about a parable of a master that gave talents to his servants. अ, अ, एक दफा खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील दी थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे शायद कनेक्शन की वजह से आवाज नहीं, मुख्तार के सिस्टर शफक आपको आवाज आई है तो आप प्लीज बताइएगा। जी The मुख्तार, आवाज ब्रेक master हुई है। called, हेलो। जी brother Joel, Amen. yeah brother Joel, you have to repeat it again because your voice was breaking up. Okay, sorry about that. Sorry about that. I said there was a time in the scripture that Jesus Christ gave a parable concerning a master that gave his servants talents before the master traveled. जी, एक दफा खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की मालिक के ताल्लुक से कि उसने उस मालिक ने अपने नौकर को जो है कुछ टैलेंट्स को आई थिंक सो टैलेंट्स सिक्के दिए शायद, जहां तक मुझे लग रहा है टैलेंट्स। जी And ये the servants and the servants were three servants. He gave one 3 talents, he gave one 2 talents, and he gave one 1 talent. No, he gave one 5 talents, he gave one 2 talents, and he gave one 1 talent. तीन तीन नौकर थे जिनमें से एक को 5 सिक्के दिए, दूसरे को 3 दिए और दूसरे को 1 और आखिरी को 1 दिया। Now, the one with the 1 talent did not bring profit. The जिसको one with the 2 talents multiplied his talent. The one with the 5 talents multiplied his talent. जिसको 1 सिक्का मिला था उसने कोई भी वापस अपने मालिक को कोई भी प्रॉफिट लाके नहीं दिया, कोई भी मुनाफा नहीं दिया। जिसको 5 और 2 मिले थे उन्होंने अपने मालिक को मुनाफा कमा के दिया। What is the Lord trying to explain to us here? इस तमसील में खुदावंद हमें क्या समझाना चाहते हैं? The church has been given gifts. The talent is actually calling. It means you're calling. You have been called for something great. कलीसिया में खुदा ने हर एक को कोई ना कोई टैलेंट दिया है, यानी कोई ना कोई सिक्का दिया है। आपकी बुलाहट है, जैसे किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है। तो आपको जो खुदा ने बुलाहट दी हुई है ना, वही दरअसल आपका ये सिक्का है, ये टैलेंट है जो आपको खुदा ने दिया। आपकी बुलाहट है ये। The day you got born again was the day you received your talent, your calling. वो ये तोड़े की बात हो रही है। तोड़ा बोल रहे हैं वो एक्चुअली। तोड़ा, ठीक है, वो ठीक है, सही है, तोड़ा। हाँ, वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। ब्रदर प्लीज Now, the meaning of talent, okay, the day you got born again was the day you received your talent. The word talent, the original meaning means calling, like to be called to serve God. जिस दिन आप पैदा होते हैं, नए सिरे से पैदाइश होती है, उसी दिन आपको खुदा की तरफ से तोड़ा मिलता है। यस ब्रदर। Now, as we are in Christ, we are all given a special calling to अब bring जब हम souls from darkness to light.
अब जब हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो हम सबों के पास एक तोड़ा लाजमी है, और वो क्या है कि जी हम उन लोगों को जो अंधेरे में हैं, जो अभी तक अंधेरे में छुपे हुए हैं, उनको अंधेरे से बाहर निकालना है। And we must prepare our hearts and become vessels unto honor, like silver and gold. और हम भी जो है अब अपने आप को जो है सोने और चांदी के बर्तनों की तरह हम भी बन जाएं। हम तैयारी करें। As a child of God, you must take your assignments seriously because Jesus is coming back again. खुदावंद के बेटे और बेटियां होते हुए आपको इस असाइनमेंट को सीरियसली संजीदगी से लेना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। You ought to love God and love His people with passion. आपको खुदा से और खुदा के लोगों से जज्बे के साथ मोहब्बत करने की जरूरत है। Don't be a selfish believer. Don't be a selfish Christian. जी, खुद गर्ज मसीही ना बने, खुद गर्ज ईमानदार ना बने। The truth you have known is the truth that will set others free. So you जी, must bring the truth to them. अगर आप सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी, और उसी सच्चाई की वजह से आप उन लोगों को जो अंधेरे में हैं अभी तक, उनको बाहर निकाल देंगे। Jesus Christ loves the whole world. That's why He died for the whole world. John 3:16. यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, सारी दुनिया से, तमाम दुनिया से उसने मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। Jesus Christ has done His assignments on earth and He has gone back to heaven. खुदावंद यीशु मसीह ने इस रोए जमीन पर अपना जो असाइनमेंट था, जो उनको खुदा ने दिया था, उनके बाप ने दिया था, वो भरपूर तरीके से, कामिल तरीके से मुकम्मल किया और वापस आसमान पर चले गए। He is in heaven right now, and what He expects from you is to do His work because you are His body. खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त आसमान पर मौजूद हैं, और वो आपसे क्या तवक्को करते हैं, वो यही चाहते हैं कि उन्होंने जो आपको काम सौंपा है वो जरूर करें। Jesus' hands is now your hands. He doesn't use His hands, He uses your hands to operate. यीशु का हाथ दर हकीकत अब आप हैं। आपका हाथ दरअसल यीशु का, वो अपना हाथ अब इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो आप में से होकर काम करते हैं। Your body is a temple, your body is a vessel. आपका बदन जो है ये मकदस है। आपका बदन जो है यही दरअसल सोने चांदी का बर्तन है। And Jesus Christ uses your body to glorify Himself on earth. और यीशु मसीह आपके बदनों को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके नाम को जलाल मिले। So the Lord is telling you and me that we must give our bodies as living sacrifice. तो खुदावंद जो है वो ये चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगियों को जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदा के मज़बा पर लाएं। The book of Romans chapter 12 and verse 1 and 2. रोमियो की किताब रोमन्स चैप्टर 12 And verse 1 and 2. रोमियो की किताब 12वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। I read, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
रोमियो की किताब 12वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर दूसरी आयत तक मैं पढ़ता हूँ। पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यानी यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। यस ब्रदर। So now you see that the Lord says we should present ourselves as living sacrifice, vessel unto honor, so that He can use us in these last days. अब देखा आपने, खुदावंद चाहता है कि हम अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी के तौर पर पेश करें ताकि खुदा इन आखिरी अयाम में हमारी बदनों को हमें इस्तेमाल कर सके। The Lord wants to do mighty things in our time and in our season. खुदा जो है बड़े अजीम काम करना चाहता है हमारे इन वक्तों में, हम जिन अयाम में हम हयात हैं, हम जिंदा हैं। खुदावंद चाहता है कि बड़े काम करे, अजीम काम करे, But He cannot do it without our consent, without us agreement, without our agreement, without us agreeing. He can't work. लेकिन खुदा ये हमारी जाती अगर हम खुद इजाजत ना दें तो खुदा इसको जो है वो नहीं कर सकता। हमारी मर्जी इसमें शामिल होनी चाहिए। The Lord wants to do mighty things with us. खुदा जो है बड़े अजीम काम करना चाहता है हमारे साथ। Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। Somebody tell yourself, I am a vessel unto honor. पार्डन ब्रदर, पार्डन। Somebody say, I am a vessel unto honor. Tell yourself, I am a vessel unto honor. अपने आप को कहें कि मैं वो इज्जत का बर्तन हूँ। मैं वो इज्जत का बर्तन हूँ। Amen. आमीन। So Jesus Christ is coming back very soon. यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। And if Jesus is coming back very soon, and we believe he is coming back very soon, और अगर खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और हम ये एतकाद रखते हैं, हमारा ईमान है कि यीशु जल्द आने वाले हैं, what are we doing to prove our love for Jesus Christ? हम इस बात के इजहार के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे पास क्या अमली इकदाम है जो हम करके दिखा रहे हैं? Because Jesus says, if you love me, you will do what I tell you to do. यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो वो करो जो मैंने तुमसे कहा है, जैसे मैंने काम किए वैसे काम करो। When you say, praise God, hallelujah, thank you, Jesus, I love you, Lord, thank you, Lord, I love you, it is good, but that is not enough. जब आप कहते हैं खुदावन तेरी तारीफ हो, खुदावन मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, ये कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं है। What gives Jesus interest is your heart and ये what he has called you to. यीशु की जो दिलचस्पी है वो सिर्फ हमारे लफ्जों पर, हमारे शब्दों पर नहीं है जी। यीशु की जो दिलचस्पी है वो हमारे दिलों से है। So if I say, Jesus, I love you, you are my Lord, you are my Savior, I love you, Lord, but I'm not doing what he asked me to do, I am not serving Jesus Christ. तो अगर मैं मुंह से तो उसका इकरार करता हूं और मैं ये कहता हूं खुदावंद मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, मैं तुझ पर एतकाद रखता हूं या रखती हूं, सिर्फ मुंह से कह रहा हूं, लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा जो खुदावंद यीशु ने करने को कहा, तो वो बेकार है। The time is short, very, very short, and Jesus is coming back soon. मेरे अजीजों, वक्त बहुत कम रह गया है और खुदावंद यीशु मसीह
की आमदे-सानी होने वाली है। And we have to do our best to bring many people from darkness to light. और हमें अपना बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन करना पड़ेगा ताकि लोगों को अंधेरे से उजाले में लेकर आए। That is why you must present yourself as a vessel unto honor. इसीलिए आपको अपने आप को मुकद्दस बर्तन की तरह अपने आप को खुदा के सामने पेश करना है। Many people don't read their Bible. The Bible they read is you they see. बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते नहीं हैं। The Bible they read is you they see. You as a Christian, that's what they see as their Bible. You're talking about other people, they see us as a book Bible, you mean to say that? Yes. लोग जो हैं वो बहुत जो लोग बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन बहुत से लोग जो है हमें देखते हैं कि हम क्या चलती फिरती बाइबल हैं, क्या हमारे अंदर वो चलती फिरती इंजील मिलती है। वो हमें समझते हैं कि हम वो क्रिश्चियन है, तो लिहाजा हमारे अंदर से मसीह झलकना चाहिए। यस ब्रदर। So we must live a pure and a good life so that people can see Jesus through us. तो इसलिए जरूरी है कि हम एक बेऐब जिंदगी गुजारें और जो लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते वो हमारी जिंदगियों को देखकर और हमारे अमाल को देखकर यीशु मसीह को पहचाने। And you cannot live a beautiful life, a righteous life, a holy life without the Holy Spirit. और आप अगर एक खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बेहतर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ये सब कुछ बगैर पाक रूह के नामुमकिन है। You need the Holy Spirit to live a righteous life. आपको रूह कुद्स की जरूरत है ताकि आप रास्तबाजी की जिंदगी को गुजार सके। Even as I am speaking right now, the Holy Spirit is moving in the hearts of people connected. अभी इस लम्हे जब मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त भी बहुत से लोगों के दिलों में पाक रूह जो है वो जुम्बिश कर रहा है। And all you need to do is open up your heart so that you can flow. सिर्फ हमें ये करना है कि हम अपने दिलों को उस खुदावंद के लिए खोल दें ताकि वो हमें इस्तेमाल कर सके। Amen. So I want to hallelujah. हालेलुया। So I want to touch your heart right now मैं and चाहता हूं कि आप check अपने दिलों को हाथ where have I gone wrong? Where do I need to make restitution back to God? Where do I need to make it right again with God? और अपने दिलों पर हाथ रख के अपना मुहासबा करें कि कहां खुदावंद मैं गलती पर हूं, कहां मैंने गलती किया, क्या ऐसा कुछ हो गया। अपने आप अपना मुहासबा कीजिए। The Holy Spirit is willing to receive you. Jesus is willing to welcome you back रूह कुद्स into life. रूह कुद्स जो है वो आपको दोबारा आपसे मिलने के लिए तैयार है। खुदावंद यीशु मसीह आप पर दोबारा से काम करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप मौका दीजिए। And the Lord Jesus wants your body to be healed. He wants you to be delivered. He wants you to be well. He wants you to know He loves you. खुदावंद चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है शिफा पाए। आप अगर बीमार हैं तो आप बीमारी से निजात पाएं। वो आपसे मोहब्बत करते हैं और वो आपको आपके पास रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। But receiving a gift and not having a relationship with Jesus, the gift will go away. अगर आप इस बात की तवक्को करते हैं कि मैं नेमत तो ले लूं रूल कुछ की, लेकिन उसके रूल कुछ के साथ ना रहूं तो वो बेकार है। If you are delivered today, if you receive healing today, you receive deliverance today, tonight, you receive prophetic word, but you are not walking with Jesus, it will mean nothing.
अगर आज आपको रिहाई मिल जाती है, बंधनों से छुटकारा मिल जाता है, बीमारी से शिफा मिल जाती है, मुआवजा हो जाता है, लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं चलते, अपना दिल उसके लिए नहीं खोलते, तो वो सब अब्स है, बेकार है। So you need Jesus Christ to help you maintain the healing and the deliverance you are going to receive tonight. तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का आपके साथ होना बहुत जरूरी है, ताकि आज आप अपना मुआवजा, अपने बंधनों से रिहाई, छुटकारा हासिल कर सकें। You need his presence and you need the word of God to dwell in you richly. आपको जो है खुदा के पाक रूह की जो है वो प्रेजेंस चाहिए, हजूरी चाहिए, ताकि वो भरपूर तरीके से आपके अंदर अपनी मामूरी को साबित कर सके, डाल सके। You might be a Christian, but maybe you have backslided back into the world. आप भले मसीही हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप वापस जो है वो दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ चले गए हों। You might be a Christian, but maybe you are not doing what God wants you to do. आप भले मसीही हैं और आप अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे जो खुदा आपसे करने को कहता है। Jesus Christ is not angry with you. He's calling you back home. Come, my son. Come, my daughter. यीशु मसीह आपसे नाराज नहीं है, बल्कि वो आज भी आपको बुलाते हैं कि मेरी बेटी आजा, मेरे बेटे आजा, वापस आजा। And he loves you so much. वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। So I want to pray for you right now. Those of you that want to say, Jesus, I am sorry for my sin. I want to return back home. I was a Christian, but I have backslided. Or you have never made Jesus the Lord of your life. And you want to say, Jesus, I want to serve you anew. I want you to be my Lord and Savior. I want to pray for you. तो जो लोग जो बैक स्लाइड हो चुके हैं, वापस अपनी दोबारा से उन्हीं दुनियावी ख्वाहिशात में पलट चुके हैं, जो भले मसीही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अब दोबारा अपने रिश्ते को खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहाल करें, तो मैं आज शाम आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूं आपके लिए। I want to repent. I want to be born again. I want to be a child of God. और मैं चाहता हूं कि आप दिल से कहें कि खुदावंद मैं एक दफा फिर पशेमान हूं, मैं शर्मिंदा हूं और मैं दोबारा से तेरा बच्चा बनना चाहता हूं, चाहती हूं। You might even be a pastor or a worker in the house of God. आप भले कोई पास्टर पासबान हो, आप कोई भी खुदा का काम करते हो, It doesn't matter. Jesus Christ wants you to change your lifestyle. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भले पासबान हो, कोई आला दर्जे पर मुकाम हो, लेकिन खुदा चाहता है कि हम दोबारा से नए सिरे से तौबा करें और दोबारा से अपनी जिंदगी को खुदा के साथ चलने के लिए, उसके साथ चलने के लायक बनाएं। I want you to lay your hands on your chest if you want to make Jesus Christ the Lord of your life. You want to repent. You want to be born again. You want to return back your revival fire again to Christ. Lay your hands like this on your chest. Let me pray for you. अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा से खुदा के साथ रिवाइव होना चाहते हैं, दोबारा से नए सिरे से अपने रिश्ते को खुदा के साथ बहाल करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं सब अपने हाथों को ऐसे अपने सीने पर रखें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Yes, just like this on your chest, your hands on your chest. Yes. And if you're doing that, please can you unmute your video? Let's see you. If you're doing that, you want to do that, unmute your video, let us see you. Because we are not ashamed of giving our hearts to Christ. You want to do that? Unmute your video, let us see you clearly. अगर आप ऐसा करते हैं, अपने रिश्ते को दोबारा बहाल करना चाहते हैं और अपने हाथ अपने सीनों पर अपने दिल के करीब रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब अपने कैमरास को ऑन कीजिए। शर्मिंदा मत होइए और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम अपने रिश्ते को दोबारा अपने मसीहा के साथ अगर रिवाइव करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम सब एक दूसरे को देख सकें
तो प्लीज अपने कैमरास को थोड़ी देर के लिए ऑन कीजिए। जो ऐसा करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को दोबारा बहाल करना चाहते हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। And pray this prayer after me. और ये जो दुआ मैं अभी करूंगा, ये मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। Lord Jesus, खुदावंद यीशु मसीह, I am a sinner. मैं गुनाहगार हूँ। I am sorry for my sins. मैं अपने तमाम गुनाहों के लिए माफी मांगता हूँ। I want to be a vessel of honor. मैं चाहता हूँ कि खुदावंद मैं इज्जत का बर्तन बनूं। I repent today. I repent today. माइक म्यूट करें आप प्लीज। अपने माइक ऑफ करें। I repent. कैमरास ऑन रखें, माइक ऑफ कर दें। ब्रदर जस्ट अ मिनट, Say, ब्रदर I repent today. आप कहिए, अपने अपने आप से कहिए कि मैं आज तौबा करता हूँ या करती हूँ। यस ब्रदर। And I am sorry for my sins. और खुदावंद मैं माफी मांगता हूँ, मांगती हूँ कि मैंने तुझे फिर से शर्मिंदा किया और मैंने गुनाह किया। I believe you are my Lord and my Savior. I believe Jesus is my Lord and my Savior. और मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद रब्बी यीशु मसीह जो है वो मेरा नजात दहिंदा है। Let your blood wash me and cleanse me from sin. तेरे लहू को मैं अपने ऊपर लेती हूँ और मैं चाहता हूँ कि तेरा लहू मेरे तमाम गुनाह धो डाले। Thank you, Father. खुदावंद तेरा शुक्र हो। I am born again. मैं नए सिरे से पैदा हो गया हूँ। I am a child of God. मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ। अब सब दुआ कीजिए। I am pure and holy. अब मैं खुदावंद खालिस और मुकद्दस बन चुकी हूँ। I am a child of God. मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ। I am born again. मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूँ। Hallelujah. हालेलुया। खुदावंद की Praise तारीफ, God, praise God, praise God, praise God, खुदावंद praise की God. तारीफ, खुदावंद की तारीफ। Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Praise God. हालेलुया। You are born again. You are a child of God.